Hello students, this is Dr. Vinod and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. In this video, we are going to solve important MCQs related with the topic self and mutual inductance. We will try to cover only those questions which already asked in different entrance examination. So without wasting time, let us start one by one. First question, pure inductance of 3 Henry is connected as shown below. The equivalent inductance of the circuit is. So there are 3 inductors are there which are connected in this way. Now assume that this is a point A, this is point B. Okay, so this is the first inductor having value L1, this is second one having value L2, this is the third one having the value L3. Now given that this L1 is equals to L2 is equals to L3, तीनों का वैल्यू यहाँ पे कितना है 3 हेनरी. हमें अब यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है बिटवीन द पॉइंट A एंड B. अब थोड़ा ध्यान से देखिए, L1 का एक टर्मिनल L2 को कनेक्टेड है और दूसरा टर्मिनल जो भी है वो डायरेक्टली L2 को कनेक्टेड है, यानी ये दोनों एक में से पैरेलल में हो गए. उसी तरह यहाँ पे L2 और L3 के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो L2 का एक टर्मिनल ये L3 के एक टर्मिनल को कनेक्टेड है और दोनों के दूसरे टर्मिनल एक में को कनेक्टेड है, मीन्स दिस टू ऑल्सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखते हैं तो तीनों इंडक्टर्स एक में से पैरेलल कनेक्टेड है. तो पैरेलल अगर कनेक्टेड है तो इंडक्टर के लिए जो भी फॉर्मूलाज है हमारे पास, सो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन द L इक्विवेलेंट हमें फाइंड आउट करना है. सो इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन L इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 प्लस 1 अपॉन L3. दिस इज इक्वल्स टू, अब तीनों की वैल्यू सेम होने की वजह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 अपॉन L. 1 बाई L प्लस 1 बाई L प्लस 1 बाई L इज इक्वल्स टू 3 बाई L. सो 1 upon L equivalent is equals to 3 by L. So therefore L equivalent is equals to, L equivalent कितना होगा L by 3 और L की वैल्यू यहाँ पे दिया है which is equals to 3 Henry. So therefore it is equals to 3 by 3 which is equals to 1 Henry. So equivalent resistance, equivalent inductance of this circuit is equals to 1 Henry. The option A is correct one. Next question. Self inductance of a straight conductor is a very conceptual question. बहुत easy है लेकिन conceptual है. देखिए यहाँ पे हमें एक straight conductor दिया गया है, उसका हमें self inductance find out करना है. अब अगर कॉइल होता तो उस कॉइल के लिए हम फॉर्मूला लिखते कि एक अगर टर्न के एसोसिएट फ्लक्स अगर फाई है और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है, n इज अ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड फाई इज अ फ्लक्स एसोसिएटेड विद द वन टर्न, दिस इज इक्वल्स टू L into I. This I is the amount of current flowing through that coil and L is the self inductance of that coil. लेकिन यहाँ पे बात हो रही है स्ट्रेट कंडक्टर की. ओके, तो यहाँ पे स्ट्रेट कंडक्टर अगर है तो उस स्ट्रेट कंडक्टर के रिलेटेड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 0 होंगे. सेकेंडली उसके रिलेटेड जो भी फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू भी 0 होगा. तो अल्टीमेटली यहाँ पे L जो भी होगा इट शुड बी इक्वल्स टू 0. यानी स्ट्रेट कंडक्टर का टोटल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस जो भी होता है इट इज ऑलवेज 0. ऑलवेज रिमेंबर दिस वन. So this A option is correct one. Next question. A 100 millihenry coil carries a current of 1 ampere. Energy stored in its magnetic field is. बहुत easy है. देखिए क्या क्या दिया है. There is a one coil having inductance which is equals to 100 millihenry. Through this coil the 1 ampere amount of current is flowing.
we have to find out the energy store. This energy we represent, it is equals to U. U is equals to question mark. ओके, तो अब देखिए क्या क्या दिया है उसको पहले हम समराइज कर लेते हैं. L is given which is equals to 100 मिली हेनरी. उसके बाद यहाँ पे करंट दिया है, करंट इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर. Okay, so we have to find out the energy. We know the formula very well. What is that formula? Formula is U is equals to total energy stored. It is equals to 1 by 2 L I square. This is equals to 1 by 2. L की वैल्यू कितना है? 100 मिली हेनरी है. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे 100 मिली हेनरी को? सो इट इज इक्वल्स टू 0.1 हेनरी. ओके, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इनटू 0.1 मल्टीप्लाइड बाय आई स्क्वायर. और आई की वैल्यू कितना है? 1 एम्पियर. 1 का स्क्वायर होगा 1. सो दिस इज इक्वल्स टू 0.1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 0.05 एनर्जी है. तो जूल में इसका आंसर होना चाहिए. सो U इज इक्वल्स टू 0.05 जूल. द ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स and the length of the solenoid are double, keeping the area of cross section same, the inductance A remains the same, B is half, third is double, fourth become 4 times. इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अब ध्यान से देखिए, हमें एक बेसिक फॉर्मूला इसका पता होना चाहिए कि सेल्फ इंडक्टेंस उस सोलेनॉइड का कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है, यानी उसका फॉर्मूला. तो फॉर्मूला फॉर द सोलेनॉइड ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L. अब यहाँ पे अगर it's a small l, where small l is the length of that solenoid, A is a cross section area of the solenoid, N is the total number of turns. It's a total number of turns. Okay, not turn density. हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि स्मॉल n एंड कैपिटल N में क्या डिफरेंस है. अगर लेंथ L लेता हूँ मैं उस सोलेनॉइड का, सो दिस इज अ टर्न डेंसिटी, मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज नथिंग बट द टर्न डेंसिटी. तो यहाँ पे हम कैपिटल N यूज कर रहे हैं, मीन्स जितने भी टर्न्स उस सोलेनॉइड में है वो पूरे का पूरा वैल्यू. ओके, म्यू नॉट N स्क्वायर A अपॉन L. अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हेन द नंबर ऑफ टर्न्स एंड द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड आर डबल. सो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स यानी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को हम डबल कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम डबल कर रहे हैं और साथ ही साथ उसका लेंथ जो भी है उसको भी हम डबल कर रहे हैं. तो अब देखिए यहाँ पे डबल अगर करते हैं तो ट्वाइस N स्क्वायर होगा, यानी 4N अपॉन ट्वाइस L. सो 1 1 गेट कैंसल. तो इंडक्टेंस की वैल्यू यहाँ पे डबल होना चाहिए. सो C ऑप्शन इज करेक्ट वन. यहाँ पे हम किसकी वैल्यू डबल कर रहे हैं? पहले N था, अब कितना हो जाएगा वो? ट्वाइस N. पहले L था, तो अब लेंथ कितना हो जाएगा? ट्वाइस L. सो दिस आर द इनिशियल वैल्यू, दिस आर द फाइनल वैल्यू. तो यहाँ पे N जो भी है नंबर ऑफ टर्न्स उसका स्क्वायर टर्म है, तो ये 4 आ जाएगा और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2, सो इट इज इक्वल्स टू 2 यानी डबल हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस. तो सेल्फ इंडक्टेंस किसके ऊपर डिपेंड होता है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा. तो यहाँ पे देखिए, दिस सेल्फ इंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर. अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाते हो तो उस कॉइल का, सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगा. दिस L इज अगेन प्रोपोर्शनल टू A, वेयर A इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया. जितना ज़्यादा एरिया करोगे उतना उसका सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगा, और जितना कम उसका एरिया होगा क्रॉस सेक्शन एरिया,
तो उतना कम उसका सेल्फ इंडक्टेंस होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन इस प्रॉब्लम में एरिया कैसा था, कांस्टेंट था, वो चेंज नहीं हो रहा था। और उसके बाद एल, जितना ज़्यादा लेंथ होगा, ये ध्यान से देखिए, जितना ज़्यादा उस सोलेनोइड का लेंथ होगा, जो भी सोलेनोइड हम कंसिडर कर रहे हैं, जितना ज़्यादा उसका लेंथ होगा, जितना ज़्यादा उसका लेंथ होगा, उतना कम उसका सेल्फ इंडक्टेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L है। ओके, so this is the length of the solenoid, this is the self inductance, value of self inductance. Next question, an EMF of 100 millivolts is induced in a coil when the current in another nearby coil become 10 ampere from 0 in 0.1 second. The coefficient of mutual inductance between the two coils will be. Okay, so यहाँ पे देखिए situation कैसा है. Situation is like this one. This is the primary coil, this one is the secondary coil. ओके, सो EMF जो भी इंड्यूस हो रहा है वो इस कॉइल में इंड्यूस हो रहा है, और कितना इंड्यूस हो रहा है, 100 मिली वोल्ट. सो जस्ट राइट इट हियर. सो E इज इक्वल्स टू 100 इंटू 10⁻³ वोल्ट. इतना EMF इंड्यूस हो रहा है, जबकि व्हेन करंट इन अनदर नियर बाय कॉइल बिकम 10 एम्पियर फ्रॉम 0. ओके, सो 0 से लेके वो 10 एम्पियर करंट इतना चेंज हो रहा है इतने टाइम इंटरवल में. मीन्स हमें यहाँ पे DI चेंज इन करंट की वैल्यू मिलेगा. फाइनल वैल्यू है 10 एम्पियर, इनिशियल वैल्यू है 0. सो देयरफॉर दिस इज द 10 एम्पियर. ओके, और टाइम इंटरवल दिया है DI इज इक्वल्स टू 0.1 सेकेंड. We have to find out the coefficient of mutual induction. So we know formula. Which formula we have? We have formula E is equals to M in terms of magnitude only, M dI by dt. Okay, अब मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लेना है, नहीं तो यहाँ पे माइनस आता था. ओके, तो E is equals to M di by dt. This is equals to what is, we have to find out the M. ओके, सो देयरफॉर दिस इम्प्लाइज दैट E की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम. इट इज़ 100 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ इज इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M. M इज इक्वल्स टू, सॉरी, वी हैव टू फाइंड आउट द M. DI इट्स 10/0.1. सो दिस इज इक्वल्स टू M into 100. So this 100 get cancelled. Therefore M is equals to 10⁻³ Henry. So M is equals to 10⁻³ Henry, which is equals to 1 millihenry. So this is required answer. The 1 millihenry is correct option. Next question. Mutual inductance of two coils can be increased by. First option is decreasing the number of turns in the coils. Second option, increasing the number of turns in the coils. Third, winding the coil on wooden core. None of the above. So इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? तो यहाँ पे देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला में पता होना चाहिए कि वो एग्जैक्टली किसके ऊपर डिपेंड होता है, तब जाके हम इजीली इसका आंसर दे सकते हैं. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो भी फॉर्मूला है, mutual inductance between two coils is equals to μ0 N1 N2 into A upon L. अब यहाँ पे what is A is a cross section area. What is N1? It is a number of turns in first coil, number of turns of first coil. N2 is a number of turns of the second coil, and L is the total length. Okay, अगर दोनों coils सेम है साइज में तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला, अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ेगा. द ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. अब इस केस में दोनों कॉइल्स का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम था, दोनों का लेंथ सेम था, सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट थे. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस
जो भी होता है नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज इन 1 second through a coil and the induced EMF is 10 volts, then the self inductance of the coil is, बहुत इजी है। यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है। सबसे पहले द करंट, ओके, जो भी फ्लो हो रहा है इट इज इक्वल टू 10 एम्पियर, सो राइट डाउन इट हियर, सो आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर। ओके, कितने टाइम इंटरवल में फ्लो हो रहा है? 1 सेकंड में। सो टाइम t is equals to 1 second. A current of 10 ampere flows in 1 second through a coil. The induced EMF is, E की वैल्यू दिया है which is equals to 10 volt. Then self inductance of the coil is. Then the self inductance of the coil is. So self inductance का फॉर्मूला यहाँ पे E is equals to L into di by dt. ओके, सो इतना करंट इतने टाइम इंटरवल में फ्लो हो रहा है, इतना करंट इतने टाइम इंटरवल में फ्लो हो रहा है और ईएमएफ इतना जनरेट हो रहा है। ओके, सो 10 इज इक्वल्स टू एल हमें फाइंड आउट करना है, डी आई की वैल्यू है 10/1, सो दिस 10 गेट कैंसल, एल इज इक्वल्स टू 1, ओके, 1 हेनरी। व्हाट इज एल? इट इज नथिंग बट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दैट कॉइल। The correct answer is option D. Next question. When the current through a solenoid increases at a constant rate, the induced current, option A, is constant and is in the direction of the induced current. Second option is a constant and is opposite to the direction of inducing current. Third option, increases with time and is in the direction of the inducing current. Increases with time and opposite to the direction of the inducing current. So यहाँ पे देखिए induced current and inducing current, इन दोनों में डिफरेंस है। ये जो भी induced current है और ये inducing current, These both are the different things. Okay, दोनों डिफरेंट है। जिस करंट के वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है और उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस करंट को हम कहेंगे इंड्यूसिंग करंट, यानी इसके वजह से ये क्रिएट हो रहा है। ओके, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अगर किसी सोलोनाइड में हम कंटिन्यूसली करंट इंक्रीज कर रहे हैं बट उसका रेट कैसा है? कांस्टेंट रेट। ओके, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा क्या वो कांस्टेंट होगा? द आंसर इज दैट यस। क्या उस ईएमएफ का जो भी ईएमएफ है, ईएमएफ इज इक्वल्स टू -L इंटू di/dt। अब अगर आप कोई भी सोलेनाइड कंसिडर कर रहे हैं तो उसका उस सोलेनाइड का डायमेंशन सेम होगा, सिर्फ आप करंट को इंक्रीज कर रहे हैं विथ कांस्टेंट रेट, तो अगर उस सोलेनाइड का डायमेंशन सेम है तो उसके लिए L कांस्टेंट होगा। अब यहाँ पे दिया है कि कांस्टेंट रेट से करंट इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, तो इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है, यानी मुझे ये कहना है कि ये दोनों टर्म्स कैसे है? कांस्टेंट है। अगर ये दोनों टर्म कांस्टेंट है तो डेफिनेटली E कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अब ये कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है। अगर E कांस्टेंट है, अगर उस कॉइल का रेजिस्टेंस R है तो उसका में से करंट जो भी फ्लो रहा वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। मीन्स इंड्यूस करंट जो भी है ये कांस्टेंट होगा। ओके, अब इंड्यूस करंट कांस्टेंट है तो ऑप्शन एक तो ये हो सकता है, नहीं तो ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि दोनों के दोनों ये कट जाएंगे। ओके, एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा। जैसे कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ वी नो दैट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अपोजिशन टू चेंज, यानी इंड्यूसिंग करंट जो भी होगा उसके अपोजिट इंड्यूसिंग करंट, सॉरी इंड्यूस्ड करंट होगा। ओके, तो ईएमएफ का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो डेफिनेटली करंट का भी डायरेक्शन अपोजिट होगा। द सेकंड आंसर इज करेक्ट वन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे. लेट्स रीड क्वेश्चन फर्स्ट. द करंट इन अ कॉइल changes from 4 ampere to 0 in 0.1 second if the average EMF induced is 100 volt. What is the self induction of the coil? इस टाइप का प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है. इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर आपको कमेंट्स पे देना है. लास्ट क्वेश्चन. The equivalent inductance of two inductances is 2.4 Henry when connected in parallel and 10 Henry when connected in series. The difference between the two inductances is 2, 3, 4, 5. Which one is correct one? Okay, so फर्स्ट इंडक्टर जो भी हम इमेजिन करेंगे, लेट अस इमेजिन दैट इट इज अ L1. सेकंड इंडक्टर जो भी इमेजिन करें इट इज अ L2. ऐसे दो इंडक्टर्स है. ओके, दोनों को जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रहे हैं उस वक्त उसकी वैल्यू आ रहा है रिजल्टेंट की, इट इज इक्वल टू 2.4 हेनरी. जब इन दोनों इंडक्टर्स को हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं उस वक्त इसकी वैल्यू आ रहा है L सफिक्स S विच इज इक्वल टू 10 हेनरी. ओके, तो LP की वैल्यू आ गया 2.4 हेनरी, LS की वैल्यू आ गया 10 हेनरी. अब इसको सॉल्व करते हैं. तो LP इज इक्वल्स टू L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 विच इज इक्वल्स टू कितना है 2.4 हेनरी है. और सिमिलरली LS इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2. इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है, सो विच इज इक्वल्स टू 10 हेनरी. अब यहाँ पे देखिए L1 प्लस L2 इज इक्वल्स टू 10 हेनरी. ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. ओके, सो देयरफॉर L1 L2 इट इज इक्वल्स टू 24, क्योंकि ये 10 मल्टीप्लाइड बाय 2.4 इट इज इक्वल टू 24. अब हमारे पास दो इक्वेशंस है. द फर्स्ट वन इज दिस वन, सेकंड वन इज दिस वन. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन हियर वी कैन राइट L1 इज इक्वल्स टू L1 की वैल्यू क्या होगा 24 बाय L2. सो इस इक्वेशन को हम कंटिन्यू करते हैं. यहाँ पे दिस इज द L1 की वैल्यू, यहाँ पे L1 की वैल्यू कितना होगा, इट इज इक्वल्स टू 24 अपॉन L2 प्लस L2 इज इक्वल्स टू 10. दिस इज इक्वल्स टू L, ये स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय L2, L2 इस साइड आ जाएगा. तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ L2 स्क्वायर माइनस 10 L2 प्लस 24. ये हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, एक मैथमेटिकल इक्वेशन मिल गया. अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद L2 की वैल्यू आएगा विच इज इक्वल्स टू 6 ओके हेनरी. तो L2 की वैल्यू 6 हेनरी आ गया. तो डेफिनेटली इस 6 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो L1 की वैल्यू कितना आएगा 4. तो यहाँ पे L1 की वैल्यू हो गया 4, L2 की वैल्यू हो गया 6. इन दोनों में डिफरेंस कितना है 2. द ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट वन. सो करेक्ट आंसर कौन सा है, फर्स्ट ऑप्शन 2 हेनरी. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू इंडक्टेंसेस. ओके, ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन जिसको हमने कर लिया सॉल्व. उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा. अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.